Hello everyone, this is Easy Multi Solution and I am Shravan Nisad. We are discussing about VSSC ISRO exam paper memory based. This is the third part of our video. So let's start the question discussion. This is the question which is asked in exam. You can see here. This is the question on a diode, Zener diode. So this is circuit. It was given likely 10 volt voltage source, 50 ohm one resistance and 6 volt breakdown voltage of Zener diode having knee current, knee current 5 milliampere and its internal resistance is 0. It was given and we have to find RL value to maintain output at 6 volt. Okay, so we will discuss the question after exploring all the questions. Okay, so next question is about ideal op-amp. You can see here for ideal op-amp which is incorrect. CMRR infinite, AD infinite, AD means differential mode gain, common mode gain infinite, input resistance infinite. इस तरह से दिया हुआ था. So what we have to do, we have to find out which one is incorrect. Okay, so we will discuss after completion of the question. Question number 11 was on 2's complement method. It was 8 bit number. It was 8-bit number and we have to find largest positive 2's complement number can be written in positive number. So we have to find this after that. Okay, 12th question. 1 cube वॉल्यूम इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. वॉल्यूम क्या है? 3 सेंटीमीटर पर क्यूब के हिसाब से, 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से ये इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम. और हमें फाइंड करना है इसका एरिया कितने हिसाब से, किस रेट से चेंज होगा. ठीक है, जबकि दिया हुआ है एक इसका भुजा, एक आर्म, एक एज, वन एज इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन एरिया. ओके, so next question is 13 number question. You can see 13 number question. You can see here, if a binary number is shifted by 2 bits left, here we have to add left side 2 bit शिफ्ट हो रहा है तो हमारा टोटल नंबर में क्या इफेक्ट होगा. सो वी विल डिस्कस आफ्टर दिस. क्वेश्चन नंबर 14 इज इनपुट सीक्वेंस लेंथ ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज L and its impulse sequence length of m. so output sequence क्या होगा, मीन्स दिया हुआ है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम ऐसे है, इनपुट सीक्वेंस क्या है, L का है, L लेंथ का है. ठीक है, इनपुट सीक्वेंस में लेंथ L है और इस सिस्टम का जो सीक्वेंस है इसमें लेंथ m है, आउटपुट का सीक्वेंस क्या है, n है. ठीक है, इट्स इनपुट सीक्वेंस लेंथ m, सिस्टम सीक्वेंस लेंथ n, सॉरी, इनपुट सीक्वेंस लेंथ इज L, सिस्टम सीक्वेंस लेंथ इज m and output sequence length is n. okay, so we have to find out the relation between all these three. okay, so next question की तरफ चलते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच सिस्टम इज स्टेबल. तो सिस्टम, कौन सा सिस्टम स्टेबल है, अभी इस पर तो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसे ही मैंने लिख दिया है. बट ये ऑप्शन ये करेक्ट है, ओनली दिस ऑप्शन आई रिमेंबर, बट ऑल दिस 3 ऑप्शंस आई डोंट नो इट इज़ करेक्ट और नॉट. बट आई विल टेल यू these 2 are stable or not, these 3 are stable or not. okay, so we will discuss after this video. आपके पास अगर आप ऑप्शन याद हो तो कमेंट में आप जरूर टाइप करें, उसको मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा. तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हैमिंग डिस्टेंस के लिए था, वो वेक्टर दिया हुआ था, 2 वेक्टर ऐसे दिए हुए थे. इसमें पूछा मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर्स, दिस एंड दिस. ओके, so we have to calculate vector. Similar question, not exactly but very similar to this. Question number 17, what is question, if fs is the Laplace transform of ft. okay, Laplace transform ft का fs है, then which one is true. so it is asking about Laplace transform definition in integral form in formula. okay, so we will discuss, this will be the answer.
So question number 18, find the slope of normal to the equation, normal to the curve, maybe normal to the curve y equals to x square plus 2x plus 1. Similar question was there, and one point given, point was 1 and 2 at point 1 and 2 at point 1 2 at point 1 2, like this it was question given. So we can solve here after completing this video. 19 क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव टू सी. देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है. एक ट्राइंगल के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है 2 3 2 7 5 3. मीन्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 2 7 5 3. सो इस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है जब दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, ट्राइंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे तुरंत. देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है. आउटपुट ऑफ एन LTI सिस्टम विथ इट्स इनपुट सिस्टम इम्पल्स सिस्टम रिलेटेड एज. मीन्स एक LTI सिस्टम है. ओके, LTI सिस्टम है, इनपुट और आउटपुट और ये सिस्टम ठीक है. इनपुट xt है, आउटपुट yt है और सिस्टम ht है. इन तीनों में रिलेशन क्या होता है ये डिस्कस करना है. तो कन्वोल्यूशन का रिलेशन होता है. यही क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. डिस्कस करने पर ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो बस इतना जानिए कन्वोल्यूशन होता है. क्वेश्चन नंबर 21, एक स्टेडी स्टेट एरर इम्प्रूव किससे होता है. बाय विच कंट्रोलर वी कैन इम्प्रूव स्टेडी स्टेट एरर. मे बी इनपुट वाज गिवन, सो आई डोंट रिमेंबर करेक्टली. मे बी इट वाज इम्पल्स इनपुट और स्टेप इनपुट. देन दिस आंसर विल चेंज ना. ओके, so I don't remember also. So we will discuss important question. Okay, now I am going to start the discussion. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जीनो डायोड का, जो कि हमने अभी आपको पढ़ के दिखा दिया था. तो एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. बस हमें क्या पता है, जीनो डायोड का नी करंट और जीनो रेजिस्टेंस 0 है और ये सर्किट दिया है, तो हम पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं रेजिस्टेंस RL का वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो देखिए ये सर्किट क्या है, ऐसे ड्रा किया गया है. यहाँ से देखिए, जूम कर दिया मैंने. यहाँ सर्किट 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 50 ओम के सीरीज़ में, और ये वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा. जब ये कट ऑफ में पहुँचेगा तो वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और ये कट ऑफ में हमें पहुँचाना ही है. वाई? क्योंकि लोड के क्रॉस हमें 6 वोल्ट, वी हैव टू मेंटेन 6 वोल्ट अक्रॉस द रोड. व्हेन we will get 6 volt across the load when this diode, Zener diode, will comes under cutoff region, breakdown region. okay, not cutoff, breakdown region. so जब ये ब्रेकडाउन रीजन में आएगा तो ये 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा. यहाँ पर 6 वोल्ट आ गया. ठीक है, अब हम इजीली इस करंट को फाइंड कर सकते हैं. 10 - 6, 10 को 6 से घटा दीजिए, 10 में से 6 को हटा दीजिए और डिवाइड 50 कर दीजिए. सो वी विल डिवाइड बाई 50, मीन्स 10 - 6 divided by 50, it will become 80 milliampere. You will get 80 milliampere. Otherwise you will get 0.08 ampere. 0.08 milliampere. So 0.08 ampere means 80 milliampere. Okay, so 80 milliampere we got current. After that we will see here, we get this current. We know this current, so we can calculate this current. So it is 80 milliampere, it is 5 milliampere, so this will be 75 milliampere. So we can calculate RL. How we will calculate? RL equals to V means 6 volt, it is 6 volt, and I 75 milliampere. So it will become 80 ohm. You can say here 6 into 1000, मिली ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा. 6 into 1000 डिवाइड बाई 75. अब ईजिली इसको कट कर सकते हैं. 25 से 3 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा. इधर 0 आ जाएगा एक, इधर से इसको कट करेंगे 2 आएगा. 40 into 2 80 ओम. 80 ओम आंसर आपका आएगा. ठीक है, 80 ओम आंसर होगा इस रेजिस्टेंस का. अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. ये क्या है क्वेश्चन नंबर 10? विच इज इनकरेक्ट अबाउट एन आइडियल ऑप एम्प. ऑप एम्प क्या है? आइडियल है. तो क्या इनकरेक्ट है? CMR इनफाइनाइट, AD इनफाइनाइट, ACM इनफाइनाइट, RN इनफाइनाइट. इसमें से क्या सही है, क्या गलत है? तो CMRR वी नो दैट इनफाइनाइट होना चाहिए. ठीक है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो.
इनफाइनाइट होना चाहिए। सो इसमें डिफरेंशियल गेन हमेशा इस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। कॉमन मोड इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी ये इनफाइनाइट। अगर ये कांस्टेंट है एडीएम कांस्टेंट है, ये जीरो होगा तो इनफाइनाइट बना देगा, ठीक है। तो ये सी एम हमारा इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, यही हमारा गलत है, इन सब में इनकरेक्ट है। बाकी इनपुट इम्पिडेंस ऑप एम्प का इनफाइनाइट होता है, आपको पता ही है। सी एम आर इनफाइनाइट, ए डी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा, यही ऑप्शन चूज करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 बिट नंबर का लार्जेस्ट क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर। सो रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का, इतना होता है -2 टू पावर n-1 से लेकर के +2 टू पावर n-1 -1, ठीक है। सो दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। सो इफ वी विल पुट n equals to 8, then we will get this very easily, okay। You can calculate 2 power 7 -1, this is 2 power 7 means 128, 128 minus 1, 127, okay, this is the answer. So now we can move page number 3, next page number 4. So one question was there, I told you earlier, one cube and its volume was changing, its volume, this is volume and this is surface area. Everyone know surface area of cube is 6a square, you can say 6x square also, ठीक है। यहाँ x क्या है, x क्या है, लेंथ ऑफ द वन एज, लेंथ ऑफ एज ये एंड लेंथ ऑफ एज की क्या है, क्यूब के एक भुजा की लंबाई है, लेंथ ऑफ वन एज लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ वन एज, ओके। सो इसमें 6 सरफेस होते हैं, एक इधर 3 हो गए और 3 छुपे हुए हैं। सो 6 सरफेस मीन्स 6, एक सरफेस का एरिया क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक सरफेस एरिया एक्स स्क्वायर, 6 सरफेस एरिया 6x स्क्वायर, ओके। सो सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना हो आ गया है, और मे भी आप जानते हो, जो लोग नहीं जानते उनके लिए था, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ ये दिया हुआ है v इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सो हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम चेंज रेट आ जाएगा, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। सो dv/dt हो गया, और यहाँ जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 3x² dx/dt, 3x² dx/dt, ये dx/dt क्यों आया, क्योंकि x जो है वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू t। सो ये x हटेगा नहीं, यदि यही होता dt/dt होता तो ये कैंसिल हो जाता, यानी कि t के रिस्पेक्ट में इसको t होता, ऐसे t² इग्नोर वेरिएबल t² को d/dt करते इसको तो 2t आता केवल, लेकिन इसमें क्या है, डेरिवेटिव इसका करेंगे तो क्या आएगा, 3x² dx/dt भी आएगा, dx/dt एक्स्ट्रा टर्म आएगा, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होगा वेरिएबल। तो इतना आ गया, जबकि हमें ये पता है dv/dt 3 दिया हुआ था, 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये क्या है, ये डेरिवेटिव करने के बाद आया, जो कि इसका वैल्यू हमें निकालना होगा। इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, dx/dt, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x क्या आ गया, dx/dt यहाँ से देखिए क्या आ गया, 1/x² आएगा, कट जाएगा तो क्या है, 1 इक्वल्स टू x² dx/dt क्या आ जाएगा, 1/x², इधर चला आएगा x² पे, ठीक है। इसको आप अभी इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिख देते हैं, लिख दीजिए। अब देखिए सरफेस एरिया 6a² होता है, सरफेस एरिया 6a² होता है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, सेम टाइप। तो ds/dt क्या हो जाएगा, 12x हो गया, इधर 12x हो गया, ठीक है। और dx/dt क्या है, 1/x², तो इससे एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक x, तो 12/x, 12/x निकल गया। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 एज इज 12 सेंटीमीटर, ओके, 12 सेंटीमीटर, सो वी कैन पुट 12 सेंटीमीटर हियर, देन वी विल गेट 1 सेंटीमीटर क्यूब, नॉट क्यूब, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। इनका जो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और ये टाइम है तो इसका यूनिट सेकंड होगा। तो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्यूब क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज, you can see here,
binary number one binary number was there and shifted left by 2 bits. So change in the original number में चेंज क्या होगा, पहले बहुत आसान से समझाता हूँ मैं। देखिए, कंसीडर कीजिए ये 2 डिजिट का बाइनरी नंबर दिया हुआ था और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा डेसिमल में 2 होगा। तो इसको एक बार शिफ्ट किए लेफ्ट में तो एक जीरो इधर ऐड हो गया, 2 बार शिफ्ट किए तो एक जीरो ऐड हुआ ही था, एक जीरो और ऐड हो गया, यानी कि 2 बार शिफ्ट किए 2 जीरो ऐड हुआ। तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 8 होता है, ठीक है। तो इधर 2 था, अब 8 हो गया, कितने टाइम हो गया 4 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया, यानी कि ओरिजिनल नंबर में हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्टेड नंबर आ जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आई होप यू गेट द आंसर, यू गेट द सॉल्यूशन आल्सो। एंड हियर आई टेकन वन अनदर एग्जांपल टू प्रूव दिस क्वेश्चन। हियर यहाँ पर क्या है 6 इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 0110। सो वी हैव टू शिफ्ट 2 बिट्स लेफ्ट, सो शिफ्टिंग 1 bit left it will go here like this, it is here one original number, okay। by shifting 1 bit here it will go here like this, we have to say 0 1 1 0 original number था, so we shifted 1 bit left, so it is shifted 1 bit left, so one place is become free, so we will put like this. We cannot write like this 0 1 1 0 and dash. By shifting this it will be created, but we cannot left it empty, we have to put this with 0. So again we have to shift it, again we will have to shift it 0 1 1 0. So a 0 1 1 0 2 times shifted means 2 times empty space, 2 0 will occupied, 2 0 will take place, then it will become it was initially 6, so 24 हो जाएगा, we can calculate 24, it is 24, ठीक है, okay। So we have to move on next question. Next question is discrete time system was given and input sequence length was L and system sequence length was M, L and M, and output sequence length was N, okay। So they are asking about relation between L, M, N. So this is the discrete time system, so every time 0 included, okay। So we have to subtract that number, we have to subtract that number, means n equals to L plus M minus 1, this will be the answer, okay। We will discuss here. You can see here xn input sequence length is 3 and system sequence length also 3. So if we will make convolution, we will convolute, means yn means output, we will get output equals to xn convolution of hn, then the length will become 3 plus 3 minus 1 means 5. Convolution length will become 5 for output, okay। We will discuss after that because it is becoming lengthy video. You can see here I written this in tabular form, okay। So xn is given like that, so you can see here this is xn and this is hn. So making convolution we will get length of 5 digit. So we will get yn length is 5. How we will get 5? 3 plus 3 minus 1 equals to 5, okay। So we can find here. If you need detailed explanation for these questions, then you can comment in comment box, then I will provide detailed solution for this question also. So we are moving on next question. Next question is about system stability, but I don't remember the question and options also. So we will discuss few questions for stability after the completion of video, okay। So next question is about Hamming distance. These two vectors was given, ये 2 वेक्टर दिए हुए थे, इसमें मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना था। सो हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या है,
what we have to do, we have to compare those two numbers parallelly. Okay, so here changed, here change, here bit change, 3 bit change means Hamming distance will become 3. Okay, all are except these 3 all are same. Okay, so we can write as Hamming distance 3, like this we can solve. So we have to move on next page. Question about Laplace transform formula. This was the formula, Laplace definition. Okay, from 0 to infinite, f of t e power minus st dt. Okay, so if any function you have to change in frequency domain from time domain, this is frequency domain, fs frequency domain, s for frequency domain means sigma plus j omega. Okay, s equal to sigma plus j omega. If we are going through j omega, then it will become Fourier series, Fourier transform, and this is if complete sigma and j omega, then it is Laplace. Okay, so this is the conversion from frequency domain to time domain, time domain to frequency domain. Okay, so this is the formula for converting a time domain signal into frequency domain by Laplace. So from 0 to infinite, positive infinite, ft, this will be the function to change the time domain signal into frequency domain signal. Okay, so we have to take this question, take this answer for our solution. Now we have to move on. Next question is that y equals to x square plus 2x plus 1, like that. If you know the digit are different, then you can comment. Okay, I don't remember this digit and I don't remember correctly this point also, so maybe it is correct. So we have to solve this question, maybe whatever. So y equals to x square plus 2x plus 1, so we have to differentiate both sides with respect to x. So we will get dy by dx equals to 2x plus 2. So we have to put this point 1 and 2, we have to put 1 and 2. So we will get dy by dx at 1 and 2 is 4, means we get m1 means slope of this line is 4. So we have to calculate normal to the इक्वेशन एंड स्लोप, इसके परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल में जो एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन इसका है नॉर्मल में, इसका जो स्लोप है m1 है, इसका स्लोप m2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे m1 इंटू m2, तो ये क्या होगा, -1 होगा। आपने 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो ये 10th क्लास में भी होगा और मैथमेटिक्स में भी था, मैथमेटिक्स में भी था, डिप्लोमा में, बीटेक में, जो भी आप पढ़े हों, ठीक है। तो ये क्या है, हमें क्या पता चल गया, m1 इक्वल्स टू 4 पता चल गया, m1 इक्वल्स टू 4 पता चल गया। m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे m1 की वैल्यू 4 को, m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m2 इक्वल्स टू -1/4, इसको हम -0.25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था, एक ट्रायंगल दिया हुआ था जिसके शीर्ष दिए हुए थे, कितने, 2 3 2 7 and 5 3. One triangle vertices are given. Then question was about what is the area. We have to calculate area. Area हमें calculate करना था. So we can draw like this, x-axis, y-axis. Okay. Then first point A, we can consider A, B, C points. Okay. A, B, C points. So point A क्या है? Point A क्या है देखिए, 2 3. So 2 x-axis पर और 3 y-axis पर. यहाँ आ गया point A. और पॉइंट बी क्या है, 2 and 7. सो 2 कहाँ चला गया, यहाँ तक चला गया, एंड 7 यहाँ आ गया, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए बी। और सी पॉइंट क्या है, 5 and 3 है। देखिए 5 यहाँ एक्स एक्सिस पर 5 और यहाँ 3 तो है ही, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमें इन दोनों को भी मिला देना है, तो एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ। वी क्रिएटेड वन ट्रायंगल हियर, सो वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, सो वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ एंड लेंथ हियर 3 and 4. इजीली वी कैन फाइंड here 5 minus 2, it is 3, here 7 minus 3, it is 4. Okay, so we can calculate this as 1/2 hypotenuse and not hypotenuse, base width 3 and height 1/2 base width into height means आधार गुणे लंब बटे 2, 1/2 आधार गुणे लंब, आप जैसे भी पढ़ते हो तो कैलकुलेट कर लेंगे एरिया। इस तरह से 6 यूनिट्स एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है, 6 यूनिट एरिया आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
output of an LTI system with input and its impulse function. System impulse function, maybe system impulse function was there. System impulse function is related as, so related as कैसे होगा, यहाँ xt है, क्या है, इनपुट है, yt क्या है, आउटपुट है, ht क्या है, सिस्टम का फंक्शन है, सिस्टम फंक्शन है. ओके, सो फॉर दिस वी स्टडीड इन सिग्नल सिस्टम. हम सिग्नल सिस्टम में क्या पढ़े हैं कि वाई टी इक्वल्स टू एक्स टी और एच टी, इन दोनों का कन्वोल्यूशन होता है. ठीक है, कन्वोल्यूशन एक्स टी और एच टी का कन्वोल्यूशन होगा. तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था. ठीक है, तो कन्वोल्यूशन आंसर हमारा होगा. उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 21 था, टू इम्प्रूव स्टडी स्टेट एरर. इसके बारे में अब हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पता नहीं था. बट हाँ, ये कंट्रोलर के बारे में था, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर, या पीआईडी कंट्रोलर, या पीआई कंट्रोलर ऐसे था, या पीडी कंट्रोलर, कुछ ऐसे ऑप्शन में दिए हुए थे. तो कंप्लीट याद नहीं है. सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट आफ्टर फ्यू टाइम. तब तक आपको बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में. और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बढ़ेगी, और मेरा ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि और मैं वीडियो बनाऊँ, किसी भी स्थिति में बनाऊँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, फिर भी टाइम निकाला आपको वीडियो बनाने के लिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.